Good morning, students. Okay. So in the previous class, we were discussing about highway geometric elements, right? Cross-sectional elements. So in this class, we'll start with the second highway geometric element, or that is nothing but side distance. Okay. So that means in this particular unit, we are going to discuss five important geometric design elements. The first one is cross-sectional elements, that is highway cross-sectional elements. Second one is side distance. The third one is horizontal alignment. The fourth one is vertical alignment, and fifth one is intersection elements. So in the previous 2-3 classes, we studied about the highway cross-sectional elements. So in this class, from another 2-3 class, we'll discuss about side distance. ठीक है, very important topic है, interesting topic है. I hope you will enjoy. Okay. See, geometric design of highways deals with the following elements. You know that already. So in this particular unit, we are going to discuss about side distance considerations. Okay. Okay, let's see some basic with respect to side distance. So then we'll move on to the in detail. Sorry. Okay. Safe and efficient operation of the vehicle on roads depends on the road length at which an obstruction, if any, becomes visible to the driver. What is the meaning? Means, say, when you are going to feel safe, especially on the road. If we are talking about transportation or highway engineering, means obviously we are talking about that when you are driving or when you are riding the vehicle or bike or four-wheeler. So you have to feel safe, and that depends upon the main thing. It is not about day night. ठीक है, डे नहीं है तो नाइट में गाड़ी का हेडलाइट रहता है, आराम से रोड दिखता है. सी अल्टीमेटली मैंने जो भी बोला, लाइक रोड दिखता है, मतलब कितना दूर तक रोड दिखेगा. So that is the most important, and that is what makes you feel safe. ठीक है. So that means safe and efficient operation of the vehicle on roads depends upon the road length at which an obstruction, if any, becomes visible to the driver. That means अगर कुछ obstructions आपके सामने है, वो कितना दूर पे है, वो कितना दूर पे आपको दिखेगा. That is the most important to maintain a safe and efficient operation of the vehicle. ठीक है. So in other words, easy इसमें बताना है तो it is nothing but the feasibility to see the ahead or visibility ahead to the driver at any instant of the road. ऐसा नहीं कि इस पार्ट पे या नेक्स्ट आफ्टर 1 किलोमीटर ऑफ या कर्व पे कहीं पे भी रहने दो, वर्टिकल कर्व रहने दो, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट रहने दो, स्ट्राइट रोड रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपके सामने कितना रोड दिख रहा है और कितना डिस्टेंस आपको दिख सकता है या दिख रहा है is nothing but sight distance. Sight means दिखने का, correct है, and distance कितना दूर. So most important है. Okay. So this is technical definition. Sight distance, it is actual distance along the road surface which a driver from a specified height above the carriageway has visibility of the stationary or moving object. So obviously it is nothing but it is an actual distance. ऐसा नहीं कि कुछ अलग पैरामीटर से देख रहे हो या ऐसा कुछ नहीं है. It is the actual distance along the road surface, correct है. So that the driver can see ahead of the road. अभी क्वेश्चन क्या है कि in particularly the driver from the specified height बता रहे हैं, because you see, समझो अगर एक शॉर्ट हाइट कम है ड्राइवर का, उसका विजिबिलिटी अलग रहता है, या आप ट्रक पे ऊपर बैठे तो एक अलग विजिबिलिटी रहता है, या कार पे बैठे तो एक अलग विजिबिलिटी रहता है, मतलब कितना दूर आगे दिखेगा. सो दैट डिपेंड्स अपॉन इवन द हाइट ऑफ द ड्राइवर ऑल्सो, और हाइट ऑफ द ड्राइवर नहीं, लाइक हाइट ऑफ द आई ऑफ अ ड्राइवर, किधर भी बैठने दो फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस, करेक्ट है ना. So that's why it is the actual distance along the road surface which a driver from a specified height above the carriageway बोले तो road has a visibility of stationary or moving object, whether it is a stationary, एक पत्थर गिरने दो या कुछ moving objects रहने दो, कुछ भी रहने दो, ठीक है.
So side distance is nothing but the actual distance along the carriageway or above the carriageway or along this surface, which a driver can, from a specified height, can see that particular object or moving object or maybe a stationary object. Okay? So in other words, it is the length of the road visible ahead to the driver at any instance. This is the simple definition. It is the length of the road visible to the driver at any instant. That is most important. ठीक है? So ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली हर एक को सामने का रोड दिखता है, बट किसी को ज्यादा दिख सकता है, किसी को कम दिख सकता है, या किसी के वजह से ज्यादा दिख सकता है, किसी के वजह से कम दिख सकता है. So what are the restrictions? ठीक है, what is the restrictions? One is horizontal curves. See, obviously when you are negotiating the horizontal curves, ठीक है, especially when you are in the inner side, so obviously you can't see that road ahead. Correct है ना? So if I need to draw like some ऐसा रोड है, समझो ये कर्व पे, ठीक है. So this is सेंटर लाइन का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है. अगर आपका समझो देर इज आपका व्हीकल इधर है, वो कर्व नहीं आता है इसलिए मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है. समझो आपका व्हीकल इधर है, ठीक है. सो दैट मीन्स जो ड्राइवर इधर बैठा रहेगा, करेक्ट है, ही कैन सी अप टू सम डिस्टेंस ओनली, बिकॉज आफ्टरवर्ड्स दिस कर्व इज लाइक दिस, रोड ऐसे जा रहा है. So you can't see the vehicle coming from this side or something like this. So this is the restriction because he is in the horizontal curve. And इसमें एक word दिया है कि inner side. So that means inner side means he is the inside this side. समझो if that fellow is standing here somewhere, ठीक है. So he can see better visibility. So समझो this fellow can see up to this much. He can see from to this much something. Correct है ना? Even this also matters. ठीक है. नेक्स्ट वन इज वर्टिकल समिट कर्व. सो ऑब्वियसली वर्टिकल समिट कर्व भी हम कंसिडर करेंगे. सो समझो समिट कर्व रहने दो, या स्पेशली समिट कर्व, लाइक समिट कर्व मींस समझो दिस इज रोड लाइक दिस, ऊपर ऐसा जा रहा है और ऐसा, दिस इज समिट कर्व, ठीक है. सो नाउ योर व्हीकल इज समवेयर हियर, सो सम वन मोर व्हीकल इज कमिंग हियर, ठीक है. सो दैट मीन्स ऑब्वियसली यू कांट सी द व्हीकल बिकॉज इट इज रिस्ट्रिक्टेड, करेक्ट है. सो दोनों इट इज रिस्ट्रिक्टेड. तो जब अनटिल अनलेस ये दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या पर्टिकुलर लोकेशन पे आएगा, देन ईच अदर दिख पाएगा. समझ में आ रहा है? सो दिस इज वर्टिकल समिट कर्व. समिट कर्व मीन्स दिस वन, ठीक है. वैली कर्व मीन्स दिस वन. क्लियर है? वो सब बाद में आएगा. नेक्स्ट इंटरसेक्शन. सो ऑब्वियसली आपको पता है इंटरसेक्शन पे व्हीकल्स स्पेशली दिखता नहीं है, क्योंकि मे बी समझो क्या बोल सकता है, ट्रीज रहेगा इधर, या पूरा इधर बिल्डिंग्स रहेगा, करेक्ट है, बिल्डिंग्स रहेगा. तो ऑब्वियसली एक पर्सन समझो एक व्हीकल इधर आ रहा है तो और एक व्हीकल इधर है, सो देयर इज ए ऑब्स्टेकल, यू कांट सी लाइक दिस अंटिल अनलेस ही रीचेस सम लोकेशन. उससे पहले अगर ये बंदा इधर है तो दिखेगा नहीं. सो ऑल दिस थिंग्स आर restrictions for the side distance, ठीक है. So see whatever I had shown, this is the diagram, ठीक है. You can see here there is a horizontal curve, this is so vertical summit curve, this is intersection. All these things are just now ये किया, explain किया, ठीक है. Okay, so if you are talking about side distance, there are three side distance we are going to consider in the design, ठीक है. The first one you can call it as stopping or absolute minimum side distance. So it is well known called as stopping side distance, SSD, ठीक है. So SSD, stopping side distance, it is also called as absolute minimum side distance. याद रखो, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय sometimes they will ask find the absolute minimum side distance. So that means you should know it is nothing but stopping side distance, ठीक है. Second one is safe overtaking side distance, OSD, ठीक है.
overtaking sight distance, or it is also called as passing sight distance. Once again, sometimes in numerical they may ask you to find passing sight distance. That means it is OSD. The last one is safe sight distance for entering into uncontrolled intersection. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टू, ठीक है. द थर्ड वन इज ओके, न्यूमेरिकल्स उतना नहीं पूछेंगे, बट सेफ साइड डिस्टेंस फॉर एंटरिंग इनटू द अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन. ठीक है, अगर इफ इट इज अ कंट्रोल्ड इंटरसेक्शन, सिग्नल विग्नल है, तो नो प्रॉब्लम, साइड डिस्टेंस का उतना फर्क नहीं पड़ता. अगर अनकंट्रोल है, मतलब नो सिग्नल्स, नो पुलिस मामा, नथिंग, देन लोग पागल जैसे घूमते रहते. पुलिस है, सिग्नल है, फिर भी पागल जैसे रहते. अगर वो भी नहीं है तो और पागल रहता है. ठीक है, तो सेफ साइड डिस्टेंस while entering into the uncontrolled intersection. So apart from these three side distance, there are another two side distance are considered by Indian Road Congress in highway design. ठीक है, उसमें फर्स्ट वन इज इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, दैट इज ISD. याद रखो सब. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज SSD, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस इज OSD. Third one was minimum side distance for while entering into the intersection, and this one is the fourth one, that is ISD, that is intermediate side distance. ठीक है, what is intermediate side distance means twice the stopping side distance. So that means if in exam if they are asking to find out the ISD, so no worries, you first find out stopping side distance which has the formula, then whatever the value you are going to get, you double it, multiplied by 2 gives your intermediate side distance. Clear? Now question is why you need ISD. See, because in some time while designing the highways, it is impossible for you to provide overtaking side distance. ठीक है, धीरे धीरे सीखेंगे what is SSD, what is OSD, उसमें कौन सा ज़्यादा रहता है, कौन सा कम रहता है. बट अभी ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक पॉइंट बता देता हूँ. Always OSD is more than higher than the SSD. समझो OSD प्रोवाइड करना है, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, 800 मीटर. समझ में आ रहा है? OSD हमको हाईवे डिजाइन करते समय प्रोवाइड करना है 800 मीटर, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है समझो 300 मीटर. ठीक है, सो आई ऑलरेडी टोल्ड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस विल बी लेस with by OSD compared to OSD. ठीक है, so now 800 meter is not possible to provide in highway, maybe because of some topography. Giving example, समझो आपका जो भी प्रोजेक्ट है उस लोकेशन पे आप OSD प्रोवाइड नहीं कर सकते because of some restrictions, maybe basically topography. ठीक है, टोपोग्राफी उतना 800 मीटर OSD प्रोवाइड करना अलो नहीं कर रहा है. Then what you have to do is, somewhere you can't use stopping side distance, it is absolute minimum है, but 800 मीटर है, 300 मीटर नहीं दे सकते. इसलिए क्या करना है, you can go with the intermediate side distance, that is 2 times the SSD. समझो 600 मीटर, ओके, समझो 600 मीटर प्रोवाइड कर सकते हो like that. ठीक है, सो सिंस ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जितना चाहिए उतना प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू हैव टू पुट सम restrictions. So that means it allows you to, it provides limited overtaking opportunities. अगर 800 मीटर प्रोवाइड किया रहता था ना, so you have full overtaking opportunities. ठीक है, but when it comes, it now you don't have that much space or length or distance to overtake. So that's why there are some limited overtaking opportunities. Second one is headlight side distance, HSD. ठीक है, so जो भी हम बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, इट्स लाइक वी आर टॉकिंग लाइक ड्यूरिंग डे टाइम. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नाइट टाइम, क्या होता है, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है ना, इट इज नथिंग बट लाइक हेडलाइट साइड डिस्टेंस. जितना आगे रोड दिख रहा है वो सब डिस्कस करेंगे, एवरी इंडिविजुअल अभी लेके डिस्कस करना है. See, what is the meaning of headlight side distance means? It is nothing but the distance visible to a driver during night driving. ठीक है, नाइट ड्राइविंग अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ द व्हीकल हेडलाइट्स. सो मतलब समझो एक गाड़ी, समझो दिस इज इन रोड. ठीक है, ये रोड है, एग्जैक्टली मैं स्ट्राइट रोड लिया हूँ. ठीक है, एंड देयर इज व्हीकल.
ठीक है. सो नाउ समझो whatever the because of that illumination of the vehicle headlights, ठीक है. सो वो जाएगा समझो, आई नीड सम शेप्स आएगा क्या, 1 सेकेंड. ठीक है. सो समझो दिस इज एन हेडलाइट एंड फ्रॉम हियर यू कैन समझो उसका लाइट का जो इफेक्ट है इस तरफ इतना दूर तक गिरेगा. ठीक है. ठीक, ओके सॉरी, थोड़ा ऐसे ही. सो समझो आपका जो ये लाइट इधर तक गिरेगा. ठीक है. सो दैट मीन्स सो दिस इज योर हेडलाइट साइड डिस्टेंस. इट इज नथिंग बट डिस्टेंस विजिबल रात को. बाकी इधर इसके आगे ना कुछ नहीं दिख रहा है उसको. जितना लाइट जितना दूर जाके गिर रहा है उतना ही स्पेस या उतना ही डिस्टेंस उसको विजिबल है. ठीक है, ड्राइवर को. सो दैट मीन्स इट इज अ डिस्टेंस विजिबल टू अ ड्राइवर ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग अंडर द इल्यूमिनेशन ऑफ हेडलाइट. व्हीकल्स का हेडलाइट का कितना दूर है उतना. ठीक है. दिस इज क्रिटिकल एट अपग्रेडियंट्स एंड असेंडिंग स्ट्रेच ऑफ द वैली कर्व्स. ठीक है. सो व्हाई इट इज वेरी मच नेसेसरी मीन्स अभी ये जब आप डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने बता रहा था, व्हेन इट इज ऐसा वैली कर्व रहता है, सॉरी दिस इज समिट कर्व रहता है, तो इस पे ना जब गाड़ी ऐसे जा रहा है तो ये जो हेडलाइट साइड डिस्टेंस है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कि आप बहुत बार ड्राइविंग करते समय या जर्नी करते समय ऑब्जर्व किया रहेगा, जब ऐसा सबमिट करवाता है ना, तो जब समझो आप इस तरफ से गाड़ी चला रहे हो आपको कुछ नहीं दिखता रहता है कि कौन सा व्हीकल आ रहा है, बिकॉज ऑफ ओनली दिस इल्यूमिनेशन लाइट. तो ऐसा कहीं तो दिखता है, ओके आपको लगता है कि सामने लाइट दिख रहा है. सो दैट इज वाई दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग नाइट ड्राइविंग. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट इन वैली कर्व्स. ठीक है. सो वैली कर्व्स में क्या होता है, समझो ऐसा वैली कर्व है, अगर आपका व्हीकल इधर से आ रहा है ऐसा, तो ये जो स्ट्राइट रोड में जितना दूर रहता है ना उतना नहीं रहता, इतना ही रहता है. ठीक है, ज्यादा दूर नहीं रहता, इतना ही रहता है. तो आपको इवन दो आपके सामने जो व्हीकल आ रहा है वो पता चल जाता है, बट आपके सामने कुछ पॉटहोल्स है या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स है वो बहुत दूर का नहीं दिखता है, तो पूरा टोटली रिड्यूस हो जाता है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इन अ वैली कर्व. ठीक है. सो दैट इज व्हाट दिस इज वेरी क्रिटिकल इन अपग्रेडियंट्स एंड असेंडिंग स्ट्रेच ऑफ द वैली कर्व्स. ठीक है. असेंडिंग स्ट्रेच ऑफ द वैली कर्व्स भी हो सकता है. ठीक है. ओके, आई थिंक आई मिस्ड वन पॉइंट. ओके, सो हियर आपको पता चल गया इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस इज नथिंग बट ट्वाइस द एसएसडी. बट व्हाट अबाउट एचएसडी? एचएसडी इज नथिंग बट द एसएसडी, because I already told SSD is absolute minimum है. Correct है. So if in exam if they are asking to find out headlight side distance, you directly find out HSD. ठीक है. And you tell that HSD is equal to SSD. If in exam if they are asking find both intermediate side distance and headlight side distance, you find SSD. So if whatever the value you will get, you twice that value, you give the intermediate side distance and the SSD is nothing but HSD. दोनों वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. So I told you these are the different types of side distance. Already हम थोड़ा हमने डिस्कस किया था. करेक्ट है. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, safe side distance for entering into the uncontrolled intersection, intermediate side distance, headlight side distance. Stopping side distance, SSD, or it is also called as absolute minimum side distance. Next one is safe overtaking side distance. Correct है. Overpassing side distance भी बोलते हैं इसको. Safe side distance for entering into the uncontrolled intersection. Intermediate side distance, which is nothing but twice the SSD, and headlight side distance, which is nothing but equal to SSD. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये इंटरमीडिएट हो गया, उतना ही है, फॉर्मूला उतना पता है, ट्वाइस द एसएसडी. हेडलाइट पता है इज इक्वल टू एसएसडी. ये ठीक है. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है. ठीक है. फॉर्मूलास आर देयर, कॉन्सेप्ट्स आर देयर, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू थिंग्स. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज विल डिस्कस इंडिविजुअली ये दोनों. ये सब तो हो गया ऑलरेडी. ठीक है. सो फर्स्ट विल स्टार्ट विद द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. डन. Okay, stopping side distance, famously it is called as SSD. Okay, so technical definition है, बहुत important है, एग्जाम में कुछ भी मत फेंको.
Okay, 1 second. Okay. The minimum distance visible to a driver ahead or the side distance available on a highway at any spot should be of sufficient to safely stop a vehicle traveling at design speed without collision with any other obstruction, also called absolute minimum side distance or non-passing side distance. Okay, so what is the meaning of side distance? Stopping side distance. किधर गया है? Okay. So if this is समझो रोड है, ठीक है. So there is a vehicle, ठीक है. समझो there is an obstacle, ठीक है. So sorry, okay, vehicle आ रहा है, ठीक है. So what is stopping side distance? It is the minimum side distance required for a driver who is driving at, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन स्पीड. whatever you are talking, you have to maintain the rules and regulations, ठीक है, at design speed, so that after seeing this, I am explaining the concept, इधर जो है उसको explain कर रहा हूँ, so that after seeing the obstacle, whether that obstacle is stationary or moving, ठीक है, you need to stop the vehicle before colliding. थोड़ा पीछे लेता हूँ. Before colliding with this object. This object may be moving or this object may be stationary. So मतलब समझो एक ड्राइवर गाड़ी चला के जा रहा है at some design speed और सामने इसको दिखा एक obstacle, stationary or moving. So he has to stop the vehicle. So the distance required to stop the vehicle before colliding with the obstacle, and that distance is called as what? SSD, stopping sight distance. Okay? And it is also called as absolute minimum sight distance, or it is also called as non-passing sight distance. Okay? So this is important. अगर टच हो गया तो it is not this one. Clear है? समझो, giving an example, this fellow is traveling at 80 kmph. ठीक है. So this is on object. आप सब कैलकुलेट करोगे, अगर SSD फाइंड आउट करोगे. मतलब अगर एक बंदा 80 kmph में स्पीड में आ रहा है और एक पत्थर को देखा या जस्ट कोई तो ऑब्जेक्ट को देखा, उसको वो स्टॉप करना है, गाड़ी को स्टॉप करना है बिफोर ईटिंग दिस रॉक. सो समझो कैलकुलेट किया, मिला समझो, आई डोंट नो, जस्ट समझो 150 मीटर, 150 मीटर, ठीक है. सो दैट मीन्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज 150 मीटर. अगर समझो अगर आप 130 मीटर भी रहा उधर दैट पर्टिकुलर लोकेशन पे, मतलब उसने थोड़ा आगे आने के बाद पत्थर को देख लिया बट 80 kmph में जा रहा है, तो अभी क्या होगा? ही नीड्स 150 मीटर बट ही इज हैविंग ओनली 130 मीटर. दैट मीन्स उसका व्हीकल जाके उसको ठोकेगा. ठीक है. इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी थिंग्स, इट डिपेंड्स अपॉन सो मेनी फैक्टर्स, वी विल सी दैट वन. ठीक है. तो जस्ट आई वाज मेकिंग यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है. ओके. Side distance available on road to a driver at any instance depends on, वही मैं बोल रहा था कि साइड डिस्टेंस जितने भी अवेलेबल है वो किसके ऊपर डिपेंड रहता है? एक, फीचर्स ऑफ द रोड, ऑलरेडी हमने बात किया है. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है तो डिपेंड्स है कि कितना साइड डिस्टेंस दिखेगा. वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द रोड, ट्रैफिक कंडीशन वो भी है, सामने कितना व्हीकल्स है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि ऑब्स्टेकल कितना दूर पे है, क्या है. बहुत बार क्या होता है पता है, आई होप यू एक्सपीरियंस्ड, आगे के बंदे के पीछे पीछे पूरा फास्ट जाते रहते हो, वो बंदा आगे वाला पाटोल उसको दिख रहा है बट आपको नहीं दिखता है, वो सडनली चले जाता है, आप सडनली पाटोल पे उतर जाते हो, वो भी हो सकता है.
पोजीशन ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन वो भी डिपेंड्स है, साइड में है, सेंटर ऑफ द रोड पे किधर है, वो भी डिपेंड्स रहता है. द सेकंड वन इज हाइट ऑफ द ड्राइवर. हाइट ऑफ द ड्राइवर्स हाई अबोव द रोड सरफेस, ऑलरेडी डिस्कस किया था. करेक्ट है. ड्राइवर हाई, कार के ऊपर है तो अलग हाइट है, जीप सॉरी लॉरी के ट्रक के ऊपर है तो अलग हाइट है, तो ऑब्वियसली दिखने का चांसेस अलग अलग रहता है. इवन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अबोव द रोड सरफेस, वो भी हो सकता है, बड़ा पत्थर गिरा है या छोटा वाला ऑब्जेक्ट है, ऑब्स्टकल है, उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि कितना दूर से आप ऑब्स्टकल को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है. So at vertical summit curve, height of the driver eye and object above road level is important. Correct है ना. So when you are talking about summit curve, मतलब ऐसा summit curve पे आप अगर देख रहे हो तो इधर ना it is very important for driver's eye. मतलब समझो ड्राइवर का हाइट इधर है इस लोकेशन पे और इस लोकेशन पे. ठीक है. तो ये कितना आगे का दिखेगा और ये कितना आगे के दिखेगा, डिफरेंस मैटर्स. मतलब उसका हाइट ज्यादा है तो जल्दी आगे का देख सकता है वो. ठीक है. सो अगर हाइट कम है तो उसका ज्यादा नहीं दिखेगा, अगर हाइट कम है तो ज्यादा नहीं दिखेगा, हाइट ज्यादा है तो दिख सकता है. आई लेवल का बात कर रहा हूं. ठीक है. सो IRC has given some recommendations for side distance. ठीक है. Especially when it comes to the height of the driver side. So आप SSD कैलकुलेट करते समय so it is variable है, but standard एक क्या बोलते हैं वैल्यूज फिक्स करके दे आर गिवन द फॉर्मूलाज. नो नीड टू गो विद डिटेल विद दिस वन. करना जस्ट तो टेक्स्ट बुक लिया तो आपको ये सब कंसिडर करके फॉर्मूला डिराइव किया है, बट नो नीड टू वरी. डेरिवेशंस कुछ भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट वेरी सिंपल फॉर्मूलाज आर देयर, यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स यूजिंग दोस फॉर्मूलाज. ठीक है. सो IRC रिकमेंडेशन फॉर हाइट ऑफ द ड्राइवर हाई इज 1.2 मीटर. सो मतलब जो भी फार्मूला उन्होंने कैलकुलेट किया इट इज दे आर टेकन 1.2 मीटर above the road surface and they taken that is standard vehicle is car. ठीक है. height of the object is 0.15 मीटर, that is 15 सेंटीमीटर लिया है above the road surface. okay, so this is about side distance का बात कर रहे थे कि किसके ऊपर डिपेंड रहता है, what are the IRC recommendation. but when it comes to stopping side distance किसके ऊपर डिपेंड रहता है, एक total reaction of the driver. मतलब मैंने पहले ही बताया, आप कितना जल्दी रिएक्ट करोगे उसके ऊपर डिपेंड रहता है. आप गाड़ी चला के जा रहे हो, सामने ऑब्स्टेकल है, अगर आपने देर से रिएक्ट किया तो आपको कम स्पेस मिलेगा ब्रेक अप्लाई करने के लिए या गाड़ी को स्टॉप करने के लिए. अगर आप पहले ही बहुत ही मतलब एक्टिव हो ड्राइव करते समय तो पहले ही आप आइडेंटिफाई कर दोगे कि कुछ तो उधर ऑब्स्टेकल है, तो आपको ज्यादा डिस्टेंस मिलेगा गाड़ी को स्टॉप करने के लिए या स्लो डाउन करने के लिए. तो मतलब रिएक्शन, आपका रिएक्शन कितना ज्यादा है, रिएक्शन टाइम. ठीक है. द सेकंड वन इज स्पीड ऑफ द व्हीकल. ऑब्वियसली अगर आप 80 kmph में जा रहे हो तो आपको समझो 100 मीटर पे दूर पे एक ऑब्स्टेकल है समझो. ठीक है. अगर आपको 100 kmph में जा रहे हो तो आपको वो 100 मीटर कम पड़ सकता है. वही आप 50 किलोमीटर पे जा रहे हो तो आपको वो 100 मीटर ज्यादा पड़ सकता है. मतलब आराम से आप स्टॉप कर सकते हो. सो इवन स्पीड डिपेंड्स, स्पीड मैटर्स. ठीक है. तो थर्ड वन इज एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स. मतलब इवन दो आप रिएक्शन टाइम अच्छा है, स्पीड भी कम था, बट एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक्स आल्सो मैटर्स बिकॉज व्हेन यू अप्लाई द ब्रेक द व्हीकल हैज टू स्टॉप. अगर प्रॉपर ब्रेक सिस्टम नहीं है तो वो इतना जल्दी नहीं रुकेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है. एंड आपका रिएक्शन टाइम अच्छा था, स्पीड ऑफ द व्हीकल भी कम है, एफिशिएंसी ऑफ द ब्रेक भी अच्छा है, बट फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड सरफेस आल्सो मैटर्स, अदरवाइज इट मे स्किड. ठीक है. इवन दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वन इज इवन द ग्रेडियंट ऑफ द रोड. अपर ग्रेडियंट है तो अलग स्पीड कम रहेगा, आराम से रोक सकता है. लो डिसेंडिंग ग्रेडियंट है तो आपका गाड़ी का स्पीड ज्यादा हो सकता है. So even that is also important. ठीक है. That is about what are the factors which affect the stopping side distance. ठीक है. एग्जामिनेशन में पूछते हैं, so important है. Next is you're talking about the total reaction time.
So this is the first point, na, total reaction of the time. So I was talking about total reaction time. See, it is the time taken from the instant the object is visible to the driver to the instant the brakes are effectively applied. Okay, what is the meaning of reaction time means? समझो you are driving the vehicle, you saw the object, or just you saw the object. समझो टाइमर उस टाइम से क्लिक करो, ऑन करो. The moment you saw the object to the moment you apply the brake, ठीक है. So इस दो क्या बोलते हैं स्टेज के बीच में जो टाइम है, so that time is called as reaction time, or amount of time gap depends on different factors. Okay, obviously that the moment you see the object and the moment you apply the brake, ये दो गैप के बीच, ये दो चीजों के बीच में जो गैप है उसको रिएक्शन टाइम बोलते हैं. और ऑब्वियसली हर एक का ये सेम नहीं रहेगा, किसी का गैप ज्यादा रह सकता है, किसी का गैप मतलब कम हो सकता है उन दोनों चीजों के बीच में. करेक्ट है ना? तो that depends upon so many factors. So during this time vehicle travel a certain distance. So obviously समझो the moment you see the object to the moment you apply the brakes, ठीक है. तो समझो मेरा है समझो 0.5 सेकेंड, समझो किसी एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लो, समझो आपका है 0.3 सेकेंड्स. So that means you are traveling at 80 kmph example, you saw the object and you apply the brakes. मैं ऑब्जेक्ट देख के ब्रेक अप्लाई करने के लिए 0.5 सेकेंड लिया और आपने 0.3 सेकेंड लिया. सो मैं 0.5 सेकेंड में मेरा गाड़ी आगे जाएगा, इट विल ट्रैवल सम सर्टेन डिस्टेंस. सिमिलरली आपका भी 0.3 सेकेंड्स में थोड़ा डिस्टेंस जाएगा. सो ऑब्वियसली आपका कम डिस्टेंस कवर करेगा और मेरा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा. दैट मीन्स जितना ज्यादा मैं रिएक्ट करने के लिए टाइम ले रहा हूँ, मेरा गाड़ी उतना आगे जाएगा और इट इज नॉट गुड फॉर stopping, it is not safe. ठीक है. So stopping side distance increases with increase in the reaction, obviously. So I need more distance to stop the vehicle and you need less distance to stop the vehicle because you reacted early. Since you reacted early, you are going to react, your vehicle is going to stop early. ठीक है, keeping all other factors standard, common for both the concepts. ठीक है. So total reaction time may be split up into two parts, perception time and brake reaction time. ठीक है, examination का points है, सब examination का points. So your total reaction time may split up into 2 points. One is perception time and second one is brake reaction time. So perception time means time required for a driver to realize that brakes must be applied. He saw the object. ठीक है. So देखो, मैंने ऑब्जेक्ट को देखा और ब्रेक अप्लाई किया. इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, परसेप्शन एंड ब्रेक रिएक्शन. परसेप्शन मैंने ऑब्जेक्ट को देखा, देन मैंने कैलकुलेशन किया, चलो ऑब्जेक्ट है, मेरे को गाड़ी रोकना है, तो आई रियलाइज दैट ब्रेक्स अप्लाई करना है. सो दिस इज फर्स्ट स्टेज. ठीक है. So that means from the instant to the object is seen to the instant he realizes the vehicle needs to stop. And this varies to driver, obviously. मेरा देख के डिसाइड करने के लिए मैंने बोला ना, I may take some time, you may take some time. मेरा ज़्यादा हो सकता है, आपका कम टाइम हो सकता है. Second one, it depends upon speed. आप जितना स्पीड से आ रहे हो उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है कि कितना फास्ट आप वो ऑब्जेक्ट को देखोगे. एंड थर्ड, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ऑब्जेक्ट कितने दूर पे. अगर बहुत पास है तो बहुत जल्दी देखोगे, बहुत जल्दी आप रिएक्ट करोगे. बहुत दूर है तो अलग आपका रिएक्शन हो सकता है, या उसके भी परसेप्शन टाइम हो सकता है. एंड इट डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बारिश हो रहा है या फॉग है, डिपेंड्स अपॉन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो. The second part, brake reaction time. You saw the object, you realized that brakes has to be applied. The second part is you are going to apply the brake, and that depends on skill of the driver. Brake apply करना भी depends upon the skill. अलग अलग बंदा अलग अलग तरह का ब्रेक अप्लाई करता है. एक सडन अप्लाई कर सकता है, एक बंदा बहुत स्मूथली लगाता है. And it depends upon the type of the problem also.
कि मतलब छोटा पत्थर है, बड़ा पॉटोल है, या कुछ एनिमल्स आ रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रॉब्लम ऑल्सो, हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई द ब्रेक्स और ब्रेक रिएक्शन टाइम कितना, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. वंस यू अप्लाई द ब्रेक, इट डिपेंड्स अपॉन इवन एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो, बारिश उस सब के ऊपर भी डिपेंड रहता है. So there is a theory called एक second. Okay, tomorrow I will start this one because it has to be explained once again properly. So from tomorrow I'll start with there is a theory called PIEV theory, PIEV, perception, intellection, emotion and volition. इसके ऊपर हम कल डिस्कस करते हैं या नेक्स्ट वीडियो पे. ठीक है, होप आपको समझ में आया, क्लियर है. सॉरी मैं स्टार्टिंग बोलना तो भूल गया. बी के स्टूडेंट्स ना बहुत सारे लोग अटेंडेंस टाइम होने के बाद दे रहे हो, सो बेटर यू डोंट गिव द अटेंडेंस. ठीक है, नहीं तो आपका टर्म वर्क इतना ध्यान पे रखो, अगर कोई ऐसे बार बार किया ना, मैं मैसेज भी टाइप करूंगा. आई डोंट नो आप इतना दूर तक आप आके ये मैसेज भी सुनोगे. ठीक है, तो टर्म वर्क ऐसे 50 टर्म वर्क है तो 25 के ऊपर नहीं जाएगा अगर ऐसे आप काम किया तो. अभी बता रहा हूँ, ये वार्निंग है, अभी बता रहा हूँ. सी व्हाट यू हैव टू डू इज, जो टाइम दिया है उसके अंदर अटेंडेंस दो, नहीं तो मत दो. 10 दिन के बाद, 2 घंटे के बाद, एक्स्ट्रा होने के बाद कभी भी आप अटेंडेंस के लिए कुछ भी अटेंडेंस डालते रहो ना, सो आई एम नोटिंग ऑल द नेम्स, कौन कौन कब कब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है बोल के. So I'm telling you, if I saw anyone else who is giving the attendance after the time period, whatever the time period is given, तो उनका मैं टर्म वर्क मार्क्स कट करता रहूंगा. आप जर्नल सबमिट करो, कुछ भी करो, देखता हूँ आपको मार्क्स 25 के ऊपर कैसे जाएगा, वो भी फाइनल ईयर पे. टर्म वर्क 50% ऑफ द टर्म वर्क काट दूंगा आपका. सो केयरफुल है, मैं पहले भी आपको वार्निंग दिया हूँ. ठीक है, थैंक यू.